السلام علیکم بیٹا। 22 فروری 2025 ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ سب سے پہلے اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ حصہ قواعد کے لانگ کوشچنس کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ لانگ کوشچنس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیز آ سکتی ہے اور ہم نے اس کو کس طریقے سے سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کلاس جو ہے وہ کہیں اور لے رہی ہوں، بورڈ نہیں ہے میرے پاس، تو مجھے پوری توجہ چاہیے کہ بورڈ کے بغیر ہیں آپ تو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جو آپ کے سب سے زیادہ نمبروں والے سوال ہے وہ ہے مضمون کا، ٹھیک ہے؟ مضمون کا سوال ہے، مضمون نویسی ہے، مضمون نویسی ہے تو اچھا جی، 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ بورڈ میں ایک ایک نمبر، آدھے آدھے نمبر کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مضمون پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، لیکن ایک بار پھر سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ مضمون کا ابتدائیہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے جو کوئی بھی مضمون آ جائے ہمارے پاس، کوئی بھی اس کا ٹاپک ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی مضمون ہو تو ایک سیکنڈ بیٹا۔ اچھا جی، کوئی بھی ٹاپک ہو، ہم نے اس کا ابتدائیہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ابتدائیہ میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے، ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک و پاک برکت نام سے شروع کرتے ہیں نا، تو ہم شروع کریں گے، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی اور اس کائنات کو انواع و اقسام نعمتوں سے بھر ڈالا۔ اتنی ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کہیں بیزار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اسے بلند و بالا پہاڑ، وسیع و عریض میدان، تا حد نظر پھیلے ہوئے ریگستان اور کھلیان، سورج چاند ستارے وغیرہ وغیرہ عطا کیے۔ وعلیکم السلام فاطمہ نور بیٹا۔ عطا کیے، ٹھیک ہے؟ اور انہی نعمتوں میں سے ایک جو بھی ہمارا ٹاپک ہوگا، اب وہ ٹاپک ہو ہمارے پاس سماجی برائیاں، وہ ٹاپک ہو ہمارے پاس پاکستان میں توانائی کا بحران، ہمارے پاس سی پیک کا منصوبہ ہو، یا ہمارے پاس اے آئی ہو، ٹھیک ہے؟ جو مصنوعی ذہانت ہوتی ہے جس کو آپ اے آئی کہتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو، ہم بات سے بات نکالتے ہوئے سیکنڈ پیراگراف پہ آ جائیں گے کہ انہی نعمتوں میں سے۔ اچھا میں بول دیتی ہوں بیٹا، بول دیتی ہوں، جی جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں لائنس۔ ہم کوئی بھی مضمون ہوگا، جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کھانا کھانے لگتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کیوں؟ کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈال دیتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کے اندر جو ہے وہ لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی اور اس کائنات کو انواع و اقسام نعمتوں سے بھر ڈالا۔ انواع و اقسام نعمتیں ہوتی ہیں کہ طرح طرح کی، انواع کے اسپیلنگ ہے الف نون واو اور پورا عین، انواع لکھے پھر آگے واو لکھیں گے الگ سے، اور پھر اقسام یعنی انواع و اقسام مرکب عطفی بھی ہے یہ، کیونکہ ان دو لفظوں کے درمیان واو آ رہے ہیں۔ انواع و اقسام نعمتوں سے بھر ڈالا، ٹھیک ہے؟ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کہیں بیزار نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا پہاڑ، کوما، وسیع و عریض میدان، وسیع لکھ کے واو ہے آگے اور پھر عریض، وسیع و عریض این رے یہ ذات، وسیع و عریض یعنی دور دور تک پھیلے ہوئے، وسیع و عریض میدان، تا حد نظر، تا حد نظر جہاں تک نظر جا رہی ہے، تا حد نظر پھیلے ہوئے کھلیان، سورج چاند ستارے وغیرہ وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ایک ساتھ سارے ایک ساتھ جا رہے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم ہر نعمت کو ضبط تحریر میں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے وغیرہ وغیرہ،
यहीं से हम बात से बात निकालते हुए फर्ज करें कि मेरे पास टॉपिक है हुब्बुल वतन, हुब्बुल वतनी। ठीक है। इस दुनिया में रहते हुए बेजार ना हो जाए, इसलिए बुलंदो बाला पहाड़, बुलंद लिख के आगे वाव है और फिर बाला है, बुलंदो बाला पहाड़, वसीओ अरीज मैदान, लिख लिया है? ता हद्दे नजर, ते अलिफ ता हलवे वाला है और दाल उसके नीचे जेर, ता हद्दे नजर, खेत और खलियान, खलियान और रेगिस्तान। फिर से रिपीट करूं? फिर से करती हूँ। अल्लाह ताला ने, वालेकुम सलाम मान बेटा। अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की और इस कायनात को अनवाओ इकसाम नेमतों से भर डाला, जिनमें, बेटा अभी हमने मजमून शुरू किया है, ईमान बेटा अभी हमने मजमून शुरू किया है कि मजमून का इब्तिदाइया कैसे करना है। 15 नंबर का मजमून है। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला ने एक कायनात तख्लीक की और इसे अनवाओ इकसाम नेमतों से भर डाला, दीगर तख्लीकात में इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया और इंसान इस दुनिया में रहते हुए कहीं बेजार ना हो जाए, उसने, बेटा बोर्ड नहीं है मेरे पास, मैं अपने घर में क्लास नहीं ले रही, कहीं और ले रही हूँ क्लास। बोर्ड नहीं है मेरे पास। और इंसान इस दुनिया में रहते हुए कहीं बेजार ना हो जाए, बुलंदो बाला पहाड़, मैं लिख रही हूँ पूरा, देख लीजिएगा। अल्लाह ताला ने ये कायनात
अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की। बेटा कौन लाइंस लगा रहा है ये? मैंने आपके लिए तो ये उर्दू का खोला है कि आपको वर्ड्स जो है वो लिखने आए। आपने कहा है लिख दें, तो आप इसको खराब कर रहे हैं। रेस करें इसको। अच्छा, रिपोर्ट में लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उसके ऊपर गंद फैला रहे हैं। और दूसरा ये कि इतने छोटे बच्चे नहीं हैं आपकी, ये हरकतें कर रहे हैं आप फजूल फजूल। हम बात करते हैं मजमून की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया मजमून का इब्तिदाइया ऐसे होगा, फिर हम बात से बात निकालते हुए लिखेंगे कि जैसे फर्ज करें हुब्बे हुब्बुल वतनी है हमारा टॉपिक। हम लिखेंगे इन्हीं नेमतों में से एक नेमत अपना वतन है या आज़ादी है। ठीक है। और फिर आप जो है वो हुब्बुल वतनी का की तारीफ लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है। एक रेलिवेंट शेर लिखेंगे, कोई भी मिली नगमा लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बताएंगे कि ये वतन हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। बड़े सगीर पाक हिंद में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे थे। सारा बैकग्राउंड देंगे। ठीक है। उसके बाद जिन लोगों ने जो है वो आज़ादी के लिए अलम बगावत बुलंद किया था, उन उन शख्सियात का जो है मखसूस शख्सियात का हम जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे के जिन लोगों में हुब्बुल वतनी नहीं है, उसकी वजह से मुआशरे को जो है वो किस बिगाड़ का शिकार होना पड़ रहा है, हम वो जिक्र करेंगे। ठीक है। पहले जो फायदे हमने बता दिए, फिर हमने नुकसान बता दिए, फिर हम अपनी राय देंगे। इसके अंदर आप अशार भी लिख सकते हैं, आप अकवाल भी लिख सकते हैं, आप आयात भी लिख सकते हैं, आप अहादीस भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है, ठीक है, लेंथ मजमून की। बेटा 4 सफ़े आपको बोर्ड देता है मजमून के लिए, और 8 पैराग्राफ मैंने बताए हुए हैं लिखने के लिए। पहला पैराग्राफ है तमहीदी, जो मैंने भी बताया है। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में तारुफ, जो भी टॉपिक आया है। तीसरा पैराग्राफ नफ्स मजमून का, जिसके लिए आपने कलम उठाया है। ठीक है। कि हुब्बुल वतनी जो है वो कैसे कायम हुई, कहाँ से आई है। ठीक है। और किन लोगों ने जो है वो इस पे अमल दरामद किया है, कौन लोग इसकी जो है वो पेशकदमी कर रहे हैं। ठीक है। वो हमने सारा बताना है। और कम से कम 3 पैराग्राफ जो है वो नफ्स मजमून के आ जाएंगे। 5 पैराग्राफ हो गए। छठे पैराग्राफ में आप फायदे बताएंगे हुब्बुल वतनी के। 7वें पैराग्राफ में आप नुकसानात बताएंगे हुब्बुल वतनी के, लेकिन नुकसान भी है इसका, वो बताएंगे। 8वें में आप अपनी राय देंगे। ठीक है। और प्लस इसके अंदर आप रेलिवेंट शेर
अहादीस और आयात भी लिखेंगे। ठीक है। जरा एक बार जो है वो इसको गो थ्रू करें ना। नुकसान, नुकसान क्या है, जरा आप सारे देखें इसका नुकसान क्या है। 3 मिनट है आपका, 3 मिनट। बेटा फिर कह रहे हैं कि छठा पैराग्राफ जो है वो रिपीट कर दूं। देखें, पहला पैराग्राफ तमहीदी, ठीक है, जो मैंने बताया है पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में तारुफ। तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, नफ्स मजमून का हो गया। ठीक है। उस उसके बाद फिर जो छठा पैराग्राफ है वो फवाइद का हो गया। सातवां पैराग्राफ नकाइस को हो गया। अब नकाइस क्या है, आप ये पूछ रहे हैं ना कि हुब्बुल वतनी के नकाइस क्या है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नुकसान है ना ये, कि आप बस ये सोच रहे हैं कि जी वतन के लिए, वतन के लिए जो है वो, ये जो लोग खुदकुश हमला आवर होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेन वॉश ही करते हैं ना, कि तुम ये काम करोगे तो तुम डायरेक्ट जन्नत में चले जाओगे। ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि वतन से मोहब्बत में जो है वो ऐसे हो जाओ कि दूसरे लोगों को जो है वो, दूसरे लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर दो। नुकसान तो है ना, क्योंकि वतन के चक्कर में फिर आप देखें ना कि हम जंगो जदल की तरफ भी तो चल पड़ते हैं ना। फर्स्ट पैराग्राफ फिर रिपीट करूं? जी बताती हूँ। अल्लाह ताला ने एक कायनात तख्लीक की और इस कायनात को अनवाओ इकसाम नेमतों से भर डाला। अनवाओ इकसाम नेमतों से भर डाला। दीगर मखलूकात में से इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया और उसे बुलंदो बाला पहाड़, वसी और अरीज मैदान, ताहद्दे नजर फैले हुए रेगिस्तान और खेत खलियान, सूरज चांद सितारे वगैरह वगैरह शामिल हैं। अब हम हर नेमत को तो सबसे तहरीर में नहीं ला सकते। हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा सुनना, सब चीजें, जो सांस भी आ जा रही है, ये सांस भी तो हमारी अल्लाह ताला की नेमत है ना। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात से बात निकालते हुए बताएंगे, और उन्हीं नेमतों में से एक नेमत आजादी, आजादी की नेमत है, या अलग वतन की नेमत है। ठीक है। फिर आप बताएंगे कि हुब्बे वतन से क्या मुराद है। हुब्बे वतन से मुराद वतन से मोहब्बत रखना है, यानी अपनी ख्वाहिशात को नजरअंदाज करके वतन के मफाद के लिए जो काम किए जाएं उनमें सरगर्म अमल रहना, ये हुब्बुल वतनी है। और हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि हमने जिस दीन इस्लाम की बका के लिए, फरोग के लिए हमने अलग वतन हासिल की है, अब हम उस पे अमल पैरा भी तो हो ना। समझ आई बात? ये लिखा हमने। फिर हमने जो है वो हुब्बुल वतनी के कुछ शख्सियात गुजरी है ना, जिन्होंने वतन के लिए जाने भी कुर्बान कर दी, जो हमारे शोहदा हैं। राशिद मिनहास हैं, अजीज भट्टी शहीद हैं, ठीक है, कर्नल शेर खान, ये जितने भी लोग हैं इनका हम जिक्र करेंगे। इन्होंने वतन की खातिर जो है वो कुर्बानी दी। फिर आप ये देखें कि जब बड़े सगीर पाको हिंद दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, उस वक्त में भी जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, आज तक उनको महाजिर कहा जाता है। लेकिन वो अगर जो है वो दिल बड़ा ना करते, अपनी अमलाक, अपनी जायदादें, अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़ के ना आते, तो क्या पाकिस्तान बन पाता? कभी भी ना बन पाता। ठीक है। उन लोगों का जिक्र करेंगे हम।
ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, एक खास बात और सुन लें। जब आपने सब कुछ लिख लिया, आपने नकाइस भी लिख दिए, नफ्स मज़मून भी लिख दिया आपने, जो है वो उसके फवाइद भी लिख लिए, एंड पे आपने अपनी आरा देनी है, अपनी राय देनी है आपने, कि आपके ख्याल में जो है वो हुब्बे वतन शहरी की क्या खसूसियात हो सकती हैं, आप ये बताएंगे। जी जी, मैं बताऊंगी आपको। मैं आपको बताऊंगी। मैं आज अपने घर पे नहीं हूँ, मैं क्लास कहीं और ले रही हूँ। मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगी। कल इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, ठीक है। परेशान ना हो, फिक्र ना करें, पता है मुझे कि मैं बता रही थी, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। और ये जो पैराग्राफ भी मैंने आपको पूरा भी लिखवाया है बार बार, वो पैराग्राफ भी मैं आपको सेंड करूंगी। ये सब कुछ मैं सेंड करूंगी आपको, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में आप अपनी राय देंगे ना, कि आपके ख्याल में जो है वो हुब्बे वतन शहरी किसे कहा जाता है, कौन होता है हुब्बे वतन शहरी। ठीक है जी। हर मजमून में, कोई भी मजमून आप शुरू करेंगे, हर काम हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं ना, कोई भी मजमून आप शुरू करेंगे उसका इब्तदाइया यही होगा, यही लिखेंगे आप पैराग्राफ। ठीक है, ये पैराग्राफ आप हर सूरत लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी। अब हम आते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो 15 नंबर का होता है, ठीक है। और अगर हम जो है वो इसके जो है वो पोर्शन पे आ जाएं, जी इन्हीं लाइन से करेंगे आप, कोई भी हो, कोई भी पैराग्राफ हो। देखिए, दुनिया में जो भी काम हो रहा है उसका इब्तदाइया अल्लाह के नाम से ही हो रहा है ना, तो हमने इब्तदाइया अल्लाह के नाम से ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो सवाल नंबर 6 है हमारा, हम उस पे आ रहे हैं। सवाल नंबर 6 है हमारा, कि कोई से 3 अशार की बहवाले शायर हमने तशरीह करनी है, ठीक है। आपको डिफरेंट गजलों के शेर आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 हिस्से आएंगे, जिसमें से आपने 3 हिस्से करने होंगे, 2 हिस्से छोड़ने होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक शेर पढ़ रही हूँ, उसमें से मैंने आपसे एलोज बनवाने हैं, ठीक है। गौर से सुनिएगा शेर क्या है। जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। इस शेर में देखिए कवाफी क्या है, मैं फिर बोल रही हूँ शेर। हम काफी अल्फाज कौन से, जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। इसमें कवाफी क्या है, आनी जानी, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, इसमें रदीफ क्या है, जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, इसमें रदीफ क्या। शान और जान हो गया, काफी है ना, ये तो मैं रदीफ पूछ रही हूँ, रदीफ क्या है। जी, कोई बात नहीं, ये रदीफ है, ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हो रही है, जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। सनत तजाद, वेरी गुड। अब्दुल रहमान शाहिद बेटा, गुड। अच्छा, और भी कोई सनत है, जरा गौर कीजिएगा। जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और कोई सनत है, गौर करें जरा, देखें। अच्छा, मैं बताती हूँ। मजाक में उससे नहीं, नहीं, हम तो सनत की बात कर रहे हैं बेटा, हम सनत की बात कर रहे हैं, ठीक है। सनत इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है मिरातुन नजीर,
क्योंकि देखें एक ही ख्याल है, जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो मिरातुन नजीर है ना। नहीं करेंगे, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, समझ आ गया है ना। ये जो आपने अभी कहा ना मिजाज मुझसे, ये सनत नहीं है, ये इल्म बयां की खूबियां हैं। ठीक है, ये तशबीह इस्तारा कनाया मजाज मुझसे, ये इल्म बयां की खूबियां हैं। चेक कर लेना कौन सा है कि कल वाली क्लास में ली है। अच्छा जी। अच्छा, ये समझ आ गया ना कि जब आप तशरीह कर रहे होंगे तो उस, ये तो रिवीजन क्लास थी ना, ये तो आईडी नहीं है। ठीक है, जब हम तशरीह कर रहे होंगे तो हमारा मकसद सिर्फ तशरीह करना नहीं है, उस तशरीह के अंदर आपके एलोज जो यूज हो रहे हैं आप वो भी बताएंगे। इल्म बयां की जो खूबी इस्तेमाल हुई, देखते हैं इसके अंदर इल्म बयां की कौन सी खूबी है। जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ठीक है, जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, कनाया है इसके अंदर, छुपी हुई बात है। ठीक है, जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी। अब आपके जहन में ख्याल होगा कि कनाया कैसे है। ठीक है, तो कनाया कैसे है, हम कह रहे हैं कि शेर का मतलब कि जिस तरीके से भी कोई जो है वो मरने के लिए गया, मरने के लिए या तो जंग के मैदान में जाया जाता है ना, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जंग का मैदान ही हो। ठीक है, अगर आप अपने वतन के मुहाफिज हैं तो आप तो, अगर कोई जो है वो आपकी वतन के खिलाफ बोल भी रहा होगा आप उसको वहां वहां भी स्टक कर देंगे फौरन। ठीक है, तो वो भी तो जो है वो फिर कनाया हुआ ना, छुपी हुई बात है। कि जिस तरीके से आप देखें, कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनकी किस्मत में शहादत की मौत होती है। ठीक है, और कुछ लोग तबही मौत मरते हैं तो उनको कोई याद भी नहीं रखता। शहीद जो होता है क्योंकि जिंदा होता है उसको हर एक याद भी रखता है। ठीक है, ये एलोज हैं हमारे, जो अभी मैंने आपसे पूछा था ना, इसमें काफिया कौन सा इस्तेमाल हुआ है, रदीफ कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये एलोज ही हैं आपके। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये सवाल नंबर 6 था। ठीक है, हम आते हैं अब सवाल नंबर 5 पे। ठीक है, ये है, नज्म का शेर है। जी जी, हर शेर में आप अलग अलग तशरीह करेंगे क्योंकि हर शेर का मतलब जो डिफरेंट होता है, हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ मानी रखता है ना, तो हम अलग अलग करेंगे। गजल की तशरीह के लिए बोर्ड ने आपको 3 शेर दिए हैं ना, और 3 ही पेजेस दिए हुए होते हैं। हर जो तशरीह है वो आप अलग पेज पे करेंगे। ठीक है, और जो नज़म की तशरीह है उसके लिए 2 पेज दिए होते हैं, और नज़म के लिए 2 पेज इसलिए दिए जाते हैं कि उसका आपको बंद दिया जाता है, एक बंद के अंदर 2 शेर होते हैं। आपकी मर्जी है नज़म की तशरीह, क्योंकि नज़म एक ख्याल पे लिखी जाती है, आप एक ही जो है वो दफा में कर लें, या फिर आप अलग अलग जो है वो बंद को शेर कर बना के करें। ठीक है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अच्छा, हम नज़म की बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, नज़म इसके अंदर जो है वो जवाब शिकवा में से शेर आया हुआ है। जरा 2 मिनट का तवक्कुफ करते हैं, अजान हो रही है, फिर जो है वो करते हैं।
अच्छा जी बेटा, समझ आ गया, ठीक है। ये नज़म की, अब नज़म का जो है मैं शेर पढ़ी हूँ, जरा देखिएगा, सिर्फ एक शेर पढ़ूंगी, पूरा बंद नहीं पढ़ूंगी। ये है, हर कोई मस्ते ज़ौक़े तने आसानी है, हर कोई मस्ते ज़ौक़े तने आसानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़ मुसलमानी है। अच्छा जी, अब आपने इसके जरा मुझे एलोज बताने हैं। इसके जरा एलोज बताने हैं, ठीक है, इसके एलोज क्या होंगे। अच्छा जी, अब्दुल रहमान इरफान बेटा, आप मुझे जो है वो बताएंगे, टेक्स्ट करें मुझे, चैट बॉक्स में करें टेक्स्ट। इसके अंदर कवाफी कौन से इस्तेमाल हुए, अब्दुल रहमान इरफान, कवाफी कौन से इस्तेमाल हुए, हर कोई मस्त है, जौके तने आसानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज मुसलमानी है। जी, गजल में 3 शेर होंगे। अच्छा, अब्दुल रहमान इरफान को नहीं आ रहे, अब्दुल रहमान शाहिद, अब्दुल रहमान शाहिद बताएंगे। जी जी, सोच लें, मैं भी इंतजार कर रही हूँ आपका। मैं रिपीट कर रही हूँ, हर कोई मस्त जौके तने आसानी है, हर कोई मस्त जौके तने आसानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज मुसलमानी है। इसमें कवाफी कौन से हैं। वेरी गुड, शाबाश, आसानी और मुसलमानी। अच्छा जी, अब मुझे आर्यान में बताना है। जी, ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे आप। जी, शाबाश, ठीक है अदीना बेटा, गुड। आर्यान बेटा, मुझे बताएं, ये जो मैं पढ़ रही हूँ, इसके अंदर मुरक्कबात कौन से इस्तेमाल हुए, हर कोई मस्ते ज़ौक़े तने आसानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। मुझे बताएं, कवाफी कौन से इस्तेमाल हुए इसमें, मुरक्कबात कौन से इस्तेमाल हुए। मुरक्कबात आपने दो ही मुरक्कब किए हुए, एक अतफी और एक इजाफी, देखे कौन से यूज हो रहे हैं। इजाफी, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गया ना। जेर जिनके नीचे आ जाएगा, बड़ी है हमजा आएगा, वो इजाफी होगा। अगर दो लफ्जों के बीच में वाव आ जाए फिर कौन सा होगा, अगर वाव आ जाए तो दो लफ्जों के बीच फिर कौन सा होगा। अतफी, वेरी गुड। अब इसके अंदर आप ये देखें, हर कोई मस्ते जौके तने आसानी है, मस्ते जौक, फिर जौके, फिर तने आसानी, 3 तरह के लफ्ज हैं, मुरक्कबे इजाफी के, और अंदाजे मुसलमानी भी, ठीक है। अब हमने इसमें से मुरक्कब भी चूज कर लिया, हमने कवाफी भी चूज कर ली। हम देखते हैं कि इसके अंदर रदीफ क्या है। हर कोई मस्ते जौके तने आसानी है, तो मुसलमान हो, अंदाज मुसलमानी है बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास आ गया रदीफ। जी, शाबाश आदिना बेटा, शाबाश। अच्छा जी, इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी सनत इस्तेमाल हो रही है। हर कोई मस्ते जौके तने आसानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज मुसलमानी है। कवाफी का बता दूं, कवाफी का लफ्ज काफिया से निकला है, ठीक है। काफिया कहते हैं हम आवाज अल्फाज को, किसी भी गजल या नज़म में आने वाले हम आवाज अल्फाज को कवाफी कहा जाता है, ठीक है। और रदीफ किसी भी काफिए के बाद फौरन बाद आने वाले जो अल्फाज हैं उनको रदीफ कहते हैं। ऐसी गजल जिसमें जो है वो रदीफ मौजूद हो, वो मुरद्दफ गजल कहलाती है, और ऐसी गजल जिसमें रदीफ मौजूद ना हो, वो गैर मुरद्दफ गजल कहलाती है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा जी, मैं ये कह रही थी कि इसमें सनद कौन सी इस्तेमाल हुई है। हमारे पास है, हर कोई इस मस्त जौके तने आसानी, तो मुसलमान हो, या अंदाज मुसलमानी है। सनत तफरीक इस्तेमाल हो रही है इसमें, सनत तफरीक, ग्रामर कर रहे हैं ना साथ साथ।
मुन्ना बेटा हम साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है। अब तफरीक कैसे है, हर कोई मस्त जौके तने आते हैं, तुम मुसलमान हो, मुझे तुम मुसलमान भी हो जैसे तुम्हारे आबा अजदाद थे। सनत तफरीक, ये अंदाज मुसलमानी है, यानी तुम्हारा तो अंदाज ही मुसलमानों वाला नहीं है। तफरीक, सनत तफरीक इल्म अदब की इस्तिलाह में, इल्म अदब की इस्तिलाह में ऐसी सनत जिसमें दो चीजों के दरमियान मुवाजना किया जाए। कहा है ना तुम मुसलमान हो, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम्हारे आबा अजदाद जैसे मुसलमान थे, अंदाज मुसलमानी उनका अंदाज मुसलमानी ये था। तुम दोनों में फर्क है, तुम्हारे आबा अजदाद में और तुम में बहुत फर्क है। जब फर्क आ जाए, ठीक है, कंपैरिजन आ जाए, तो उसको सनत तफरीक कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखते हैं, अब हमने मुरकबात भी चूज कर लिया इसमें से। ठीक है। एक चीज और है इसके अंदर, रमूजो औकाफ, आप देखें। तुम मुसलमान हो, सवालिया का निशान है, ये अंदाज मुसलमानी है, फिर सवालिया का निशान है। ठीक है। निदाइया जी, अ, निदाइया नहीं है बेटा, तुम मुसलमान हो। ठीक है। सवालिया निशान है दोनों जगह पे, ये अंदाज मुसलमानी है दोनों जगह पे। ठीक है। सवालिया है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है। अच्छा जी, हम थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है। एक इक्तबास होता है जिसकी तशरीह हमने करनी होती है। ठीक है, तशरीह आसान अल्फाज में लिखने का नाम है। अब मेरे पास जो है वो एक चैप्टर है। ठीक है। अब वो चैप्टर का एक पैराग्राफ है। जब मैं उसकी तशरीह करूंगी तो मैं तशरीह की हेडिंग दूंगी ब्लू ब्लू कट मार्कर से, और उसके बाद मैं लिखूंगी ये इक्तबास शामिल निसाब सिनफ अदब के एतबार से हिस्सा नसर से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हैयत के एतबार से मजमून है, सुकरात में से है, और सुकरात जो है वो हैयत उसकी मजमून की है। ठीक है। अब इसमें भी हमने वही चीज करनी है। पैराग्राफ में पढ़ती हूँ आपके सामने, पैराग्राफ है, आपने सिर्फ सुने बस। पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ है, सुकरात की राय में मौजूदा वक्त को किसी आने वाले दिन की उम्मीद पर रायगा कर देना बड़ी गलती है। वो किसी चीज का पसंदाज करना, यानी बचा बचा के रखने को कहते हैं पसंदाज करना। इसीलिए पसंदाज करना इसीलिए एक सिरे से फजूल कहता है, इक्तसाबे इल्म, इल्म सीखने का अमल जो है, के लिए उसके ख्याल में किसी खास की कैद नहीं। उम्र का हर हिस्सा इंसान को मालूमात और तरक्की दे सकता है। ठीक है, उसकी राय में कुतब बीनी एक ऐश है, कुतब बीनी बुक रीडिंग, जो हर शख्स का इख्तियारी अमर है। वो एक जाहिल को वाजिबुर रहम कहता है, यानी वो इंसान जो पढ़ता है और पढ़ने लिखने के बाद जो है वो अक्लो दानिश से आरी है बिल्कुल, उसको जाहिल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ लिया। मुझे ये बताएं कि इसके अंदर एलोस क्या यूज करेंगे आप। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सुकरात की राय में मौजूदा वक्त किसी आने वाले दिन की उम्मीद पर आएगा कर देना बहुत बड़ी गलती है। ठीक है। उसके बाद है, वो किसी चीज का पसंदाज करना इसके लिए एक सिरे से फजूल समझता है। इक्तसाबे इल्म के लिए इसके ख्याल में किसी वक्त, खास वक्त की कैद नहीं। उम्र का हर हिस्सा इंसान को मालूमात और तरक्की दे सकता है। इसकी राय में कुतब बीनी एक ऐश है, जो हर शख्स का इख्तियारी अमल है। वो एक जाहिल को वाजिबुर रहम करार देता है। हाँ जी बेटा। मुरक्कब इजाफी, गुड इब्राहिम बेटा, शाबाश। ठीक है, शाबाश। मुरक्कब है, वेरी गुड, शाबाश। अब्दुल रहमान शाहिद बेटा, गुड। अच्छा जी, हो गया बेटा। अच्छा जी, इसके हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके अंदर एक जूते की आप बीती है।
वक्फा मुरक्कब इजाक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सायरा बेटा। एक साथ करना चाहे तो एक साथ भी कर लें, अलग अलग करना चाहे आपकी मर्जी है, मार्क्स मिल जाते हैं दोनों सूत्रों में। ठीक है, अच्छा जी। एक जूते की आप बीती है, आप बीती क्या चीज होती है जो आप पे गुजर गया है। ठीक है। जिस चीज की भी आप बीती होगी आप अपने ऊपर तारी कर लेंगे कि आप वो हैं, ऐसे अब जूते की है तो आप समझिए कि जूते आप हैं। अच्छा जी, और दूसरा है इसमें, अपने दोस्त को खत लिखना है जिसमें उसे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करना है। अब मुल्क की मौजूदा सूरत हाल क्या है? पॉजिटिव वे में हम लिखेंगे। सब अपनी अपनी जगह पे मेहनत करें। एक सेकंड बेटा, मैं आपकी बात पढ़ नहीं सकी, आपने क्या कहा है? मैं देख रही हूँ, एक सेकंड, नजर नहीं आया। जी, मजमून में 8 पैराग्राफ लिखेंगे, 4 पेजिस पर बिल्कुल। गजल की तशरीह एक साथ करनी है। एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे, क्योंकि गजल का हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। नज्म की तशरीह आप साथ करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इक़्तिबास क्यों लिखेंगे आप? एक शीट पे इतनी जगह नहीं होती, सिर्फ तशरीह के लिए जगह होती है। कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्वेश्चन नंबर इसीलिए लिखे हुए हैं। आपने उस पर किया हुआ है तो चेक करने वाले को पता है आपने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब एक असाइनमेंट है आपके लिए, ठीक है। आपने अपने दोस्त को खत लिखना है जिसमें उसे मुल्क की सूरत हाल से आगाही देनी है। दोस्त के नाम खत लिखना है। एग्जामिनर को पता चल जाएगा, ये शीट के ऊपर नंबरिंग होती है, जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया हुआ है। जैसे आपका दिल चाहता है आप तशरीह करें। ठीक है। असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया, आप सब ने कल की क्लास से पहले लिख के रखना है अपने दोस्त के नाम खत जिसमें उसे अपने मुल्क की सूरत हाल से आगाही देनी है। ठीक है। खत का पैटर्न बता दूं, बिल्कुल पेपर की राइट साइड पे आप लिखेंगे इस कमरा इम्तिहान, उसी के बिल्कुल नीचे आप लिखेंगे अलिफ बे जीम। ठीक है, और उसके नीचे आप तारीख लिखेंगे। पेपर के बिल्कुल मिड में जो 3 चीजें आपने लिखी हैं, इस कमरा इम्तिहान, तारीख। ठीक है। उसी के नीचे आप फिर शुरू करेंगे खत। और खत जितना यानी कि सॉलिड किस्म के उसमें पॉइंट्स लिखें। और जिसको जो है वो खत लिखने पहले उसका नाम आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर टॉपिक भी बताऊंगी आयान बेटा, लेकिन अभी घर पे नहीं हूँ। ठीक है, कल वाली क्लास घर पे लूंगी तो कल बताऊंगी। मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले पेपर के बिल्कुल दाएं जानिब पे टॉप पे आप लिखेंगे अस कमरा इम्तिहान, उसके नीचे आप लिखेंगे अलिफ बेजीम, उसके नीचे आप तारीख लिखेंगे। फिर उसके नीचे पेपर के मिड में आप लिखेंगे जिसको आप खत लिख रहे हैं। ठीक है। अगर तो आपका रिलेटिव है फिर तो आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, अगर नहीं है तो फिर डायरेक्ट जो है वो बात शुरू करेंगे। ठीक है। जी, मुल्क के हालात के बारे में बताने हैं कि मुल्क में मौजूदा सूरत हाल क्या है। ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो सारी की सारी सड़कें जो है वो खुद ही पड़ी हैं। बारिश हुई है तो अब कीचड़ का अंबार है इधर। ठीक है। अच्छा जी, ये खत का टॉपिक फिर से रिपीट कर रही हूँ। लेटर के एंड पे जब पूरा लेटर आप लिखेंगे, लेटर में कम से कम जो है वो 4 पैराग्राफ होंगे आपके।
ठीक है। उसके बाद एंड पे आप पेपर के बिल्कुल बाएं जानिब लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे आपका खैर ख्वाह अलिफ बे जीम। ठीक है। और मसाइल को आप 1 2 3 4 5 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। मौजूदा सूरत हाल के जो मसाइल हैं उनका आप 1 2 3 4 करके भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है। कल क्लास शुरू होने से पहले मुझे असाइनमेंट चाहिए। ठीक है। मैं फिर से रिपीट करी, अपने दोस्त को खत लिखें जिसमें उस अमूर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह कीजिए। ठीक है। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह।